from history textbook. This is lecture number 1 of chapter number 4, History of India Arts. In standard, we are going to cover a few topics, just 2 pages. What is art? उसके अंदर में आता है visual arts, performing arts, folk arts, classical arts, style in arts. Then we have Indian tradition in visual arts. This is the topic. These are the topics which we are going to cover. और उसके सब topics है ये. इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स. विजुअल आर्ट्स को इंडिया में बोला जाता है दृक कला, ठीक है. और आर्ट ऑफ पेंटिंग, फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. वी आर गोइंग टू कवर 2 टाइप्स ऑफ दृक कला पेंटिंग, ठीक है. तो दिस इज क्लास सर टू यू, वेलकमिंग टू योर ओन क्लासेस, द ट्यूटर्स. History of India Arts, chapter number 4. What is art? It is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotions. When that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factors at the root of artistic creation. Now, कोई भी इंसान आर्टिस्ट नहीं बन सकता है. It is very very difficult to become an artist. ठीक है. First you need to have an imaginary power, imagination. तुम लोग को बहुत ज़्यादा strong imagination होना चाहिए. You should have visualization. तुम लोग बंद आँखों में भी खुली आँखों से ज़्यादा साफ देख सको, ऐसा तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए. My God. ठीक है. So ये जो चीज़ें हैं ये एक आर्टिस्ट को पैदा करती है. वी कैन से दैट. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग जो हमारे इमोशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम लोग उसको लिख कर या पेंटिंग करके या स्केच करके या हम लोग बता कर किसी को, अगर हम लोग बता कर या हम लोग पोइट्री के थ्रू नरेट करते हैं, बता सकते हैं किसी को, दैट इज कॉल्ड एन आर्ट. सिंपल चीज़, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई एम अ राइटर एज वेल. Not a full-time writer, not as well as not a part-time writer as well. But the thing is, I write. I am satisfied with my writing work. So that is छोटा मोटा एक है आर्टिस्टिक चीज़ है, ठीक है. कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, जैसे I have one very special person in my life who does painting. तो the painting is also a type of an art. Playing with the colors, putting down colors on a page or any particular surface, कोई भी चीज़ पे, और उससे अपने imaginations, अपने creations को बयां करना, that is called an art. To become an artist, you need to have strong factor, one strong factor, that is your imagination. You should have that power. तुम लोग दुनिया से हटके सोचने का ताकत रखना चाहिए. कि दुनिया से हट के सोच होनी चाहिए, तब जाके ही तुम लोग एक आर्टिस्ट बनते हो, ठीक है. लेक्चर इज गोइंग टू बी क्वाइट ह्यूज आई गेस, बिकॉज मैंने इसको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही 2 मिनट ले लिया है. We need to cover many things, okay? Now, visual arts and performing arts. Artistic creations are of 2 types, visual arts and performing arts. The Sanskrit term for the first type is दृक कला and for the second type is ललित और आंगिक कला, ठीक है. विजुअल आर्ट्स को संस्कृत में बोला जाता है दृक कला और परफॉर्मिंग आर्ट्स को संस्कृत में बोला जाता है आंगिक कला या ललित, ठीक है. Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It is proved that the origin of visual arts is as old as the Stone Age man. बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, विजुअल आर्ट्स के बहुत सारे एविडेंसेस हिस्टोरियंस को मिले हैं, ठीक है. और ये माना गया है कि ओल्ड एज, जो मतलब स्टोन एज के टाइम से ही जो विजुअल आर्ट्स है वो चलते आ रहा है. विजुअल आर्ट्स इज इतना पुराना है कि वो स्टोन एज के टाइम से है. फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स. There are 2 distinct traditions of arts. First is folk arts and second is classical arts. Obviously, we are studying that particular thing. ठीक है. Folk art
is a tradition that has continued from the prehistorical times. The expression of folk art is a natural part of people's way of living. Hence, its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the members of social group. Classical art, on the other hand, is expressed within an established frame of consistent rules. It needs a prolonged training to master any form of classical art. Now, the main basic difference. Now, folk arts and classical arts, ये दोनों का मैं difference बता देता हूँ तुम लोगों को कि क्या है. Folk art is nothing but a style of living, a way of living of people, and classical art उसके लिए तुमको थोड़ा सा bondages में जाना पड़ता है. ठीक है, बाउंड्रीज होती है folk arts की ना, और क्लासिकल आर्ट्स की. folk arts की कोई बाउंड्री नहीं है. हम लोग जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं, वो एक आर्ट में क्रिएट होती है, आर्टिस्टिक चीज़ है. आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, दिस इज़ माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वट इज़ इन दिस चैप्टर. दैट इज़ नथिंग बट माई वे ऑफ एक्सप्रेशन, माई वे ऑफ टेलिंग यू. बहुत सारे लोगों ने इसका लेक्चर लिया रहेगा, बट मेरा जो तरीका है ये मेरे लिए एक फोक आर्ट है. ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कंसिडर नहीं भी हो सकता होगा फोक आर्ट में, बट जस्ट एन एग्जाम्पल. फोक आर्ट इज नथिंग बट द वे वी लिव आवर लाइफ. इट टर्न्स आउट टू बी एन आर्टिस्टिक थिंग वेरी फ्रीली. ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ को फ्रीडम, एकदम फ्रीडम से मतलब बिताते हैं, और वो जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट वी काउंटेड फोक आर्ट्स. बट इन क्लासिकल आर्ट्स यू नीड टू गेट ट्रेनिंग, यू नीड टू हैव प्रॉपर मास्टरिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तुम लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से अगर कोई चीज़ नहीं आती, दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर नॉट एट ऑल अ क्लासिकल आर्टिस्ट. और अगर तुम लोग फ्रीली कोई चीज़ करे, जैसे कि आई एम ड्राइंग समथिंग वेरी फ्रीली, मतलब मैंने नदी बना दी है, जो नदी एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैंने उस चीज़ों को बना दिया है, दैट इज नथिंग बट आई कैन काउंट इन फोक आर्ट्स. ठीक है, जिसके लिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाई है कि मुझे नदी बनाना सीखना है. समझ में आ रहा है? क्लियर? फोक आर्ट्स इज very very free in nature, whereas classical arts, for that particular thing you need to take training, you need to have certain limits. You cannot just go and become a classical artist. You can become a folk artist by your own way of living, जैसे मैंने तुम लोग को बताया अभी. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे. we have style of art, style in art, of art नहीं है, style in art है. ठीक है, आर्ट्स लिखा है. आर्टिस्ट्स टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. हर आर्टिस्ट का एक अलग ही तरीका है, एक अलग ही अंदाज है, तो उसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट. व्हेन अ स्टाइल इज अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बिकम ट्रेडिशन. जब एक ही स्टाइल बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने अपनाना चालू कर दिया, से फॉर एग्जांपल बाय लुकिंग एट मी, मेनी ऑफ द पीपल ट्राई टू बिकम, यू नो, बहुत सारे लोग टीचर बनना चालू करते हैं, तो एक ट्रेडिशन बनती है. Such tradition gets established as an art style. Various art styles develop in every culture, which are characteristics of a certain period and region. Such styles are helpful in studying art history. ठीक है, अब बहुत सारे जनरेशन, बहुत सारे प्रीवियस टाइम में हिस्टोरियंस ने पता लगाया है कि कौन से टाइप के स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते थे आर्टिस्ट के थ्रू, और वही स्टाइल को लोग स्टडी करके उन आर्टिस्ट के बारे में स्टडी करते थे. से फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज स्टडिंग अबाउट सम पर्सन, सम आर्टिस्ट, तो उसके स्टाइल को जाना जाता था, वो इंसान उसके स्टाइल से जाना जाता था, वो इंसान उसके आर्टिस्टिक चीज़ों को जब कंडक्ट करता था, जो भी चीज़ वो बनाता था, से फॉर एग्जांपल पेंटिंग वगैरह जब बनाता था, तो उसके स्टाइल से वो चीज़ जानी जाती थी, उसका नाम उसके स्टाइल से, उसके पेंटिंग से जाना जाता था. समझ में आ रहा है? ओके. इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट्स को, जैसे कि मैंने बताया तुम लोग को, दृक कला भी बोला जाता है इन संस्कृत. द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट्स. हम लोग पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और पेंटिंग में भी सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे. आर्ट ऑफ पेंटिंग उसका मेन पैराग्राफ है, और उसमें फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ेंगे. पेंटिंग्स आर ऑफ टू डायमेंशंस. For example, sketches or paintings of nature, objects and individuals. They are done on various surfaces such as rocks, walls, papers, canvas of different types or
and earthen pots. The mural of Bodhisattva or at Ajanta caves is one of the finest examples of the art of painting on rocks. Now, पेंटिंग जो है वो 2 डायमेंशन होती है. 2 डायमेंशनल मतलब 2D, ठीक है. 3D नहीं होती कि पेंटिंग बाहर आ जाएगी. 3D पेंटिंग भी आज इमर्ज होकर आई है एज एन आर्टिस्ट, लोगों को पता होगा. बट 3D पेंटिंग बहुत मुश्किल होती है बनाना. 2D पेंटिंग्स ईजी होती है, बट ईजी इतना भी ईजी नहीं होता है. इफ़ यू सी द आर्ट वर्क ऑफ प्रीवियस पीपल लिविंग ऑन अर्थ, जो पिछले टाइम के जो लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, उसको लोग ने रॉक्स वगैरह पे पेंट किया था, या यू कैन से स्केच बनाया था उसका, ठीक है. पेंटिंग जो है वो रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवस, ये सब पे वो लोग बनाते थे. अर्थन पॉट्स पे बनाते थे. बोधिसत्वा, म्यूरल ऑफ बोधिसत्वा मतलब स्टोरीज ऑफ बोधिसत्वा, ये अजंता केव्स पे उन लोग ने पेंटिंग बना के डिपिक्ट किया है कि वो लोग क्या करते थे, कैसा लाइफस्टाइल उनका था वगैरह उसमें. Folk styles of painting. Rock paintings dating to Stone Ages have been discovered in many countries. In India, there are rock paintings sites in state of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Rock painting ये सारे states में तुम लोगों को देखने मिलेगी. The rock painting in the caves at Bhimbetka are famous. Bhimbetka is a World Heritage Site. Rock painting जो भीमबेटका पे है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. रॉक पेंटिंग यूजुअली डेपिक्ट ह्यूमन, एनिमल, ज्योमेट्रिक फिगर्स. रॉक पेंटिंग जो है वो ह्यूमंस, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स को डिपिक्ट करती है. उसमें जो कल्चरल चेंजेस और आए हैं फ्रॉम स्टोन एज टू एग्रीकल्चरल एज, स्टोन एज से लेकर एग्रीकल्चरल एज तक जो भी चेंजेस आए हैं ह्यूमन लाइफ में, वो सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्रेशंस या यू कैन से पेंटिंग के जरिए वो लोग पता लगाते हैं. आई टोल्ड यू पीपल इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि जो रॉक पेंटिंग है, जो विजुअल आर्ट है, वो स्टोन एज के टाइम से चला आ रहा है. तो स्टोन एज के टाइम से एग्रीकल्चरल एज तक जितने भी रॉक पेंटिंग्स है, उसको जब हम लोग देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो वी कैन सी दैट के बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफस्टाइल में. स्टोन एज मैन कैसा रहता था, एग्रीकल्चरल करने वाला इंसान, एक्टिविटी करने वाला इंसान कैसा रहता है वगैरह सब, ठीक है. सो वी कैन स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम दोज पेंटिंग्स एज वेल, ठीक है. With the help of rock painting, we can understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources. Okay, हम लोग ancient लोगों के बारे में स्टडी कर सकते हैं with the help of rock painting. How they used their availability of natural resources, how they used to exploit. इन लोगों ने exploit का I don't know why इतना negative word use किया, but exploitation नहीं बोलना चाहिए. How they used to I can say that how they used the natural resources which was provided to them by the nature, ठीक है. The tradition of folk styles of painting closely resembles the style of rock painting. Customs such as decorating the house, wall and courtyard, that is rangavali, by drawing various figures and symbols or using panels of paintings to narrate stories help to develop regional styles of folk painting. Okay, we are going to stop here for the day, but I am going to explain this paragraph, don't worry. Okay, what they have told us that कि जो वो टाइम के जो लोग थे, एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, या जो पिछले टाइम के लोग थे, जो जिनके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, फ्रॉम द रॉक पेंटिंग वी कैन स्टडी अबाउट देयर लाइफस्टाइल. वो लोग कैसे घर को सजाते थे, वो लोग कैसे उनके घर के आंगन को सजाते थे, रंगोली कैसे निकालते थे, हाउ डू यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, हाउ डू यूज्ड टू गैदर अराउंड, और वो लोग गैदरिंग करने के टाइम में क्या खाते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था. From Stone Age till the agricultural age, we can study about the evolution of human being, or not just the evolution, but बीच बीच में कभी उनके ड्रॉबैक्स क्या थे उनके लाइफस्टाइल के, बीच बीच में मतलब कैसा उनका लाइफ खत्म हो जाता था. जैसे कोई फमाइन वगैरह आती है, जैसे अभी हम लोग 2020 के बारे में जब हम लोग के बच्चे आगे जब पढ़ेंगे, तो कैसे 2020 को एज अ वेरी डिजास्टरस ईयर काउंट किया जाएगा, just because of corona and certain things happening on the earth. हम लोग देखते हैं अभी. Okay, so I guess the lecture is going quite huge, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और I don't know why I am fumbling today. बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ मैं, I don't know. Okay, so
lastly, I would like to conclude with one more important thing. We are going to experience a cyclone in our surrounding day after tomorrow. कल से थोड़ा बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. आज थोड़ी सी सुबह बारिश हुई थी, ठीक है. कल बारिश और बढ़ेगी और परसों के दिन और बढ़ जाएगी और 4th and 5th ऑफ जून को बारिश सबसे ज़्यादा रहेगी. 3rd, 4th and 5th को 5th तक कम हो जाएगी. But the thing is, we are going to experience cyclone, and please, this is the first cyclone in previous 100 years. पिछले 100 साल में अभी तक मुंबई में साइक्लोन तो आया नहीं है. महाराष्ट्र कोस्ट पे अभी तक कोई भी साइक्लोन टकराया नहीं है. So it will be the first cyclone of this century, you can say. So please don't miss it. कि तुम लोग मतलब सोते रह गए या तुम लोग फ़ोन में घुसे पड़े रह गए, ऐसा मत करो. प्लीज़ एक्सपीरियंस सच थिंग्स. ये बहुत रेयरली होती है. बाहर देखो, ज़्यादा तूफानी साइक्लोन रहेगा नहीं, ज़्यादा हवा नहीं चलेगी. इट विल बी जस्ट ऑन द कोस्टल पार्ट्स. इट विल बी 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर विंड स्पीड. एंड अपने इधर आते आते वो 50 तक आ सकती है या 40 तक आ सकती है. बट इट इज़ स्टिल क्वाइट ह्यूज. सो आई वांट यू पीपल टू एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर थिंग. बारिश देखो कैसी होती है ड्यूरिंग साइक्लोन्स. एंड स्टे सेफ. घर पे से देखो, ठीक है. खिड़की सबके घर में होती है. बाहर में चल नहीं करने बोला कि बाहर जाके तुमको साइक्लोन देखना है. खुद उड़ जाओगे तुम लोग कितने से वो 10 में हो, ठीक है. तो एक्सपीरियंस द साइक्लोन. इसका नाम है निसर्ग. एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, अगर तुम लोग इसको फॉलो करना है तो अपने चैनल के तुम लोग तो फॉलो किए हो. यूट्यूब का अपने क्लासेस को तो फॉलो किए हो. ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब बंद मत करो. स्काईमेट वेदर नाम का एक चैनल है, उसको भी फॉलो कर दो. यू कैन गेट प्रॉपर डेली अपडेट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग. हर एक पर्टिकुलर चीज़ का अपडेट. गर्मी कब होगी, ठंडी कब होगी, बारिश कब होगी, कितने टाइम पर होगी, हर पर्टिकुलर टाइम का अपडेट उन लोग देते रहते हैं. सो दैट पर्टिकुलर ऐप इज़ वेरी यूजफुल. नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो है. स्काईमेट ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल. लाइक करो, शेयर करो और इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रखो. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो और उनको बोलो कि और आगे भेजे. इसको चेन बनाओ. और आई एम फाइंडिंग कि तुम लोग वीडियोस नहीं देखते हो. बहुत कम हो गया है तुम लोग का इंटरेस्ट, आई गेस. सो आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर थिंग. इसको और जनरेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो और कोशिश करो कि हम लोग के सब्सक्राइबर्स बढ़े, चैनल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हम लोग सक्सेसफुल हुए. इट इज़ नॉट इन माई हैंड, इट इज़ इन योर हैंड. और तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है उसकी वजह से हो सकता है. अगर तुम लोग कंप्यूटर पे देख रहे हो, इट इज़ वेल एंड गुड. जिस पे भी देख रहे हो, प्लीज़ शेयर द वीडियो. ओके, तो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर. दिस वाज वासिफ वीडियो साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच.